Hey guys, I am back with another video of one of the लीड कोड प्रॉब्लम जो कि फेसबुक पे पूछी गई है। और लीड कोड पे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट इनसे आती है। सो देखते हैं आज की क्या प्रॉब्लम है। kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन BST। सो लेट्स सी कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो मूव टू द यही kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट BST में। और तब तक के लिए हम एक वाइट बोर्ड ओपन करने लगा देते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि गिवन ए बाइनरी सर्च ट्री, राइट अ फंक्शन kth स्मॉलेस्ट टू फाइंड द kth स्मॉलेस्ट एलिमिनेटेड। kth का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पोजीशन से रेफर कर रहा है। इट इज़ नॉट दैट एलिमेंट, ये एलिमेंट को रेफर नहीं कर रहा। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ k1, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 इसे रिटर्न करना है। ये बेसिकली पोजीशन को रिटर्न कर रहा है कि कौन सी के की 1 पोजीशन है। तो अगर मैं नीचे से देखूं तो ये मेरी 1 पोजीशन पे आ रहा है, राइट। इसलिए ये 1 पोजीशन पे है। ये एग्जांपल्स इन्होंने गलत लिए हुए हैं। आई ऑल्सो मैं भी गलत समझ बैठा था जब मैंने फर्स्ट टाइम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा था। तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 मिनट लगे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने में कि इन्होंने एग्जाम्पल गलत क्यों दिए हुए हैं। तो जैसे अगर k इक्वस टू 3 बोलूँ तो 3 का इन्हें एक और ट्री बनाना चाहिए था जिसमें 1, 2 और 3 को यहाँ रखना चाहिए था। क्योंकि जो k3 का मतलब है, दिस इज सेइंग कि आप 1, 2 एंड 3 थर्ड एलिमेंट आप निकाल के, थर्ड पोजीशन का एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड स्मॉलेस्ट है ना। अगर BST का आपको पता हो, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री जो होती है हमारी लेफ्ट और राइट चाइल्ड को कंटेन करती है। जिसमें लेफ्ट हमारे जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं और राइट जो होते हैं बिगर होते हैं। और जो रूट वैल्यू होती है वो इन बिटवीन होती है। ठीक है। तो since actually we are recording in English, so let me just describe the problem statement. So I was covering that what this problem is. Like it seems some of the inputs and outputs are incorrect. Like in order to understand this problem much better, because in given situation they have told us to write a function to calculate the kth smallest, which is referring to the position of the element, right. It is not that exact element that they are looking for an example. If if they are saying k equals to 1, then it does not means that the first node, the node which contains the 1 value is going to be returned. It means that the first element, which is the smallest and lying on the left side, right, that should be returned. For an example, just consider this case where let me just open the notepad for you. um, yes, right. So consider a case if you do have any nesting, further nesting 4 in between. I'll do it in whiteboard. So meanwhile you can understand the problem with the this thing that we have to return the last, like last kth element of the smallest one. So if they have asked for third, if they have asked for second element, then it would have been second, this one, right. So let's assume that you are having the value of let me just explain in much detail what is, right. And 50, 30, 60, 40, 20 and 10, right. This is the problem statement. Yes. So if I go with the rule, they k equals to third, right. So what does it mean? So k equals to 3 means is
the last first element smallest, because in BST there is a rule that all those smallest element will be on the left side and all those greater than greater element will be on the right side. This is the rule of binary search tree. And got it? So let me just explain quickly that the first element, when it goes to the second smallest element, since the smallest element is lying in the left side, so we are going by one. So we will iterate through each and every element and we'll find out the smallest one, and then after we will return it back to the parent one until or unless the k until or unless we find the kth element, right? So first iteration, second iteration, right? Second count, basically the first count itself, this is the first count itself, second this one, and third this one, right? First element this one, second element this one, third element is this one. That is why they are returning the 3. So they should have 50, 30, 20, 10, 40 to 60, so that they can explain much better. And similarly, if they have 30, 10, 20, and 4, and they have the kth of 1, then they would have returned the 1, right? This is referring to the position. So let me just describe in Hindi also, like मैं ये समझा रहा था कि 50 जैसे कि हमारे पास ये जो ट्री प्रॉब्लम समझाई हुई है, ये गलत यहाँ पे इलाबरेट करती है। कभी कभी ये रिटर्न करता है कि ये 3 जो एलिमेंट है, मुझे ये एलिमेंट रिटर्न करना है, जबकि दिस इज ये स्मॉलेस्ट पोजीशन को रेफर कर रहा है। बाइनरी सर्च ट्री का रूल है कि जितने भी लेफ्ट सब ट्री होते हैं और जितने भी राइट सब ट्री होते हैं, राइट में सारी ग्रेटर देन वैल्यूज आती हैं, लेफ्ट में सारी स्मॉलर वैल्यूज आती हैं। ठीक है, समझ गए? अगर इसको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे कर लो, ये ग्रेटर वैल्यूज के लिए, ये लेफ्ट वैल्यूज के लिए। तो अगर मैं ये वाला ट्री ड्रॉ करूँ जिसमें 50, 30, 20 और 10 है, तो जो मेरा थर्ड एलिमेंट मुझे फाइंड करना है, ठीक है, पोजीशन को रिफर कर रहा है। थर्ड एलिमेंट कौन सा? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट में थर्ड एलिमेंट, राइट? तो सबसे स्मॉलेस्ट तो हमारा सबसे मिनिमम ये होगा, राइट? फिर हमारा जो इससे ऊपर होगा वो होगा, फिर उससे ऊपर होगा ये थर्ड। तो इसलिए हम 30 को रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने गलत प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है जो कि कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि के इक्वल्स टू 3, यहाँ पे अगर के इक्वल्स टू 1 बोलता हूँ तो 1 रिटर्न कर दिया, 3 बोलता हूँ तो 3 रिटर्न कर दिया। तो अंडरस्टैंडिंग बनती नहीं कि पोजीशन को रेफर कर रहे हैं या एलिमेंट को रेफर कर रहे हैं, राइट? तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। अब हम इसमें लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। क्यों लॉजिक हम देखते हैं कि लॉजिक हमारा क्या क्या अप्लाई हो सकता है। क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है तो यहाँ पे कुछ एल्गो होती है, जैसे डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च, सॉरी गाइस। तो डीएफएस में भी 3 एल्गो होती है हमारी, इन ऑर्डर, पोस्ट पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर, राइट? प्री ऑर्डर, ठीक है। प्री ऑर्डर में क्या होता है कि रूट पहले आता है, लेफ्ट राइट बाद में आते हैं, चाइल्ड और नोड बाद में आते हैं। पोस्ट में राइट ये कहते हैं राइट पहले आता है, फिर रूट, फिर लेफ्ट, राइट? इनमें लेफ्ट राइट ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इन ऑर्डर ट्रेवर्स करना है। इन ऑर्डर क्यों? क्योंकि हमें लेफ्ट में जाना है पहले। लेफ्ट में हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें लेफ्ट में मिलेगी ना, इसलिए हमें लेफ्ट में जाना है। अगर जैसे कि हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए होती तो हम पोस्ट ऑर्डर करते, समझ गए ना? Similarly, in English also, like I was describing what approaches that we can follow in order to resolve this problem. So I was telling that we can have a algorithm DFS, depth first search. Depth first search have a algorithm, multiple approaches here. Like the first one is in order, second one is post order, and third one is the post order and the pre order. Pre-order, sorry for my, actually I'm typing with my mouse. So so this is the problem statement. So I was telling that in order, why and in order can be
opted for this problem statement because we are going to the left subtree and we are finding out the smallest one. If we were looking for the highest one, then we would have chosen the post order, right? Because post order will get the maximum element of that tree. This is a like this is a rule of BST. Binary search tree holds the all those minimum all those less elements in the left subtree and all those greater element in the right node. So this is the problem statement. Let's go to the code, how we can code it. अब हम चलते हैं कोड पे कि कोड हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. Just to shorten the video length, that I'm just cost cutting some of the factors. Like earlier I used to write a piece of code at the time of your understanding, but which basically increases the length of the video. So I thought it would have been greater that I can write all piece of code line by line and I can understand each and every statement. सो गाइज आई बस मैं कह रहा था कि अगर मैं पहले वीडियोस जितनी बनाई थी उन सब में मैं कोड साथ के साथ करता था जिससे कि वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाती थी. तो आई थॉट कि मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दूं, बट इफ़ यू लाइक दैट वे देन डेफिनेटली आई राइट दैट वे. प्लीज़ डू कमेंट बिलो. यप, तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम. सो फर्स्ट आई विल गो विद द हिंदी वन, देन आफ्टर आई मैं पहले हिंदी में समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इंग्लिश में समझा दूंगा. तो हमने क्या किया हुआ है, हमने काउंट लिया हुआ है. काउंट क्यों लिया हुआ है, हम जब इससे ऊपर जाएंगे तो हमें एक काउंट चाहिए होगा. अच्छा, इससे ऊपर जाने से पहले मैं एक और ट्री बना लेता हूँ. राइट, ये एक ट्री मान लो. सिमिलरली, राइट, सेम. तो हम ये क्यों कर रहे हैं, काउंट क्यों ले रहे हैं. पहले काउंट लेने का मतलब ये है, जब भी हम एक नोड से दूसरे नोड पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें केथ एलिमेंट चाहिए, राइट. केथ एलिमेंट के लिए हमें वो डेप्थ काउंट करना पड़ेगा, कितने एलिमेंट कौन से एलिमेंट पे है. तो इसलिए काउंट इज बेसिकली द पोजीशन काउंटर. गॉट इट. पोजीशन काउंटर है कि जब हम ट्रैवर्स करते हुए नीचे जाएंगे और हम रिकर्सिवली इन ऑर्डर में क्या होता है कि रिकर्सिवली आप कॉल करके बैक ट्रैक होते हो. बैक ट्रैक का मतलब है कि पीछे नोड पे आते हो. तो जैसे कि अब मैं एक एलिमेंट पे गया, नहीं मिला, फिर एक एलिमेंट पे गया, नहीं मिला, फिर एक एलिमेंट पे गया, नहीं मिला, फिर लास्ट एलिमेंट पे गया, फिर लास्ट एलिमेंट से चालू किया कि अच्छा लास्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, थर्ड मुझे काउंट करना है. तो यहाँ से मैं काउंटर स्टार्ट करता हूँ. तो यहाँ से मैं काउंटर करूँगा 1. ये 1 हो गया खुद का, ये 1 2 और ये थर्ड एलिमेंट निकालना है, राइट. यू कैन से k-1. अगर आपको कंफ्यूजन है कि हम इटसेल्फ ना काउंट करें तो k-1 भी कर सकते हो आप. ठीक है, इट्स अगेन द सेम थिंग. तो वही हम कर रहे हैं कि मैं पहले लेफ्ट में जा रहा हूँ, है ना. जैसे अगर आप रिकर्सन में देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है इनलाइन इनर फंक्शन कि इनर फंक्शन को मैंने यहाँ से कॉल कराया हुआ है और रिजल्ट मैंने अभी 0 लेके चला है, जो कि रिजल्ट अभी हमारे पास रिजल्ट वैल्यू नहीं है. और मैंने यहाँ से इन ऑर्डर फंक्शन परफॉर्म कर दिया. जावा स्क्रिप्ट में ये फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता. तो अगर मैं लाइन बाय लाइन चलूँ तो पहले लेफ्ट पे जाएगा, तो हम गए लेफ्ट पे, राइट. फिर मैं एक और ड्रॉ कर लेता हूँ मीनवाइल अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट. एक अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ मैं इतना ही क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है. तो रिकर्सन समझाने के लिए, रिकर्सन कैसे है होता है वो समझाने के लिए. अब जैसे मैंने लेफ्ट को कॉल किया, राइट. अगर रूट का लेफ्ट है तो वो इन ऑर्डर फिर से परफॉर्म कर दे. मैं इस पे एलिमेंट पे गया, रूट का लेफ्ट है, तो फिर से इन ऑर्डर परफॉर्म करने के लिए कह रहा हूँ. तो अब इस पे खड़े होके मैं इन ऑर्डर परफॉर्म कर रहा, अभी तक मैं इस पे होके इन ऑर्डर परफॉर्म कर रहा था, ठीक है. फिर से मैं इस पे इन ऑर्डर परफॉर्म कर रहा हूँ. बेसिकली मैं इस नोड पे जाके इन ऑर्डर फंक्शन को दे रहा हूँ कि भाई इन ऑर्डर परफॉर्म कर दो, इस पे भी इन ऑर्डर परफॉर्म कर दो, ठीक है. तो जो भी एल्गो होगी वो हर एक नोड पे परफॉर्म होती जाएगी. दिस इज हाउ द रिकर्सन वर्क्स, ठीक है. अब हम चलते हैं काउंट पे. ओके, ये लेफ्ट पे गया, फिर ये देखेगा लेफ्ट, क्योंकि इस पे रन कर रहे हैं तो फिर ये इस पे लेफ्ट पे गया, तो ये यहाँ पे देखा इसने, यहाँ पे कुछ नहीं मिला इसे, ठीक है.
तो इसने क्या किया, रिटर्न करना चालू कर दिया। जब रिकर्सन में काम करते हैं तो ये जब एलिमेंट इसे नहीं मिलेगा तो ये रिटर्न कर देगा, राइट। क्योंकि अगर ये जैसे कि लेफ्ट रूट राइट कुछ नहीं मिलता तो ये रिटर्न करेगा स्टैक से। तो स्टैक से जब रिटर्न करेगा तो ये यहाँ पे आएगा, जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, राइट। क्योंकि जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट हो गया तो ये क्या करेगा, इस स्टेप को परफॉर्म करेगा। इस स्टेप को कैसे परफॉर्म करेगा, जैसे इसने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल किया, जैसे हम हर एक पे कर रहे थे, तो ये क्या करेगा, ये तुरंत ऊपर ये यहाँ से स्टैक से रिटर्न होगा ये वाला एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, तभी काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, काउंटर +1, क्योंकि हम एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, राइट, इसलिए। अब हम चलते हैं इस पे, ये हो गया एक प्लस। अब सेम यहाँ पे इन ऑर्डर परफॉर्म हो रही थी, इसकी इन ऑर्डर कंप्लीट हो गई, अब इसकी भी इन ऑर्डर परफॉर्म हो रही थी। तो इसने देखा अच्छा लेफ्ट तो हो गया मेरा, और खुद का एलिमेंट, अब एलिमेंट खुद का प्रोसेस करेगा। प्रोसेस क्या करेगा, ये चेक करेगा दिस डॉट काउंट इक्वल्स टू के, अगर वो के के बराबर है तो क्या करे, रिजल्ट कर दे। हमें ये भी तो फाइंड करना है के की वैल्यू, तो के बराबर देखनी है एलिमेंट, तो के बराबर नहीं है अभी, एक ही स्टेप हुआ है, राइट। तो ये रिटर्न नहीं करेगा। अब ये राइट में जाएगा, राइट का मतलब है इसका लेफ्ट हो गया, इसके तो लेफ्ट राइट है ही नहीं, तो ये परफॉर्म ही नहीं करेगा, इसका रिटर्न हो गया सीधे। इसका लेफ्ट हो गया है, राइट होना बाकी है, तो राइट में जाएगा ये। अब राइट में चेक करेगा, राइट में इसे कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, तो ये राइट में परफॉर्म करके छोड़ देगा। अब ये केथ इस पे भी परफॉर्म करके देखेगा, अगर देखा जाए तो केथ हम इस पे भी परफॉर्म कर रहे हैं इन ऑर्डर, ठीक है। तो हम इस पे भी देखेंगे, नहीं है कोई एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, इसे रिटर्न कर देंगे, क्योंकि राइट जो है हाईएस्ट होता है, तो इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये दोबारा से रन किया, अब ये इसके, क्योंकि इसके लिए रन हो चुका है, राइट। अब हम इसके लिए देखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए देखा, तो हमारी जो प्रोसेस थी यहाँ पे देखा कि यही सिमिलर फैशन हमारा इसके लिए परफॉर्म, हर एक नोड के लिए होता जाएगा। वो एक एक लेफ्ट सब ट्री से करता जाएगा, जैसे ये कर लिया, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, राइट। तो इसलिए जब जहाँ पे हमारा बीच में हम चेक करते जाएंगे पोजीशन लेफ्ट राइट में, कि हमारे पोजीशन अगर है तो वो रिटर्न कर दे। ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैं इंग्लिश में समझाता हूँ। वी आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस इन this that the how the backtracking works and how the recursion works basically. So under the hood what happens is, like when you traverse a tree, let's say this is the tree, and you go you iterate to each and every function, you attach a function to each and every element, or I would say each and every node. So let's say this is a node, you have attached a one order function here, right. The odd and the same order function here, and the all those nodes, if they have all other nodes, so they will be attached with the same function. So recursion, what it does is, like if it did not find any of the left or right, then it returns basically from the call stack. So the call stack is basically some way of representing a memory call stack, where they when we call a function, it basically reference that function inside the call stack to memorize the what is going to be run next, right. So like we have run this function, this function, this function, and then after this function returns, and when this returns, we used to calculate the value, right. So we what we are going to do, what we are going is, like we are traversing one node by one, and first we are going with the left one, and we are counting that value in the second step, like while going to the upper side, so saying that the counter should be 1, and then after, like after incrementing that counter, we need to check if the counter is the same position, counter holds the same position as we have in k value, and if they have, then the value should be returned, otherwise it will traverse to the right element of that node. And why in order? In order means, like we have to traverse the first node and then after the right node. The first node, left node is basically the first node, and the in order means left. Let me just write it: left, root, and right. This is the uh, root node traversal approaches in order. So I think this would be much clear.
So guys, that's it from my side. uh, I hope कि आपको ये रिकर्सन समझ में आया. ये रिकर्सन के इश्यूज हैं. अगर आपको एक बार रिकर्सन समझ में आ गया तो you'll get the problem easily. So thank you guys. Thanks. Bye bye. And let me just show you if it is running or not. Accepted, right? Great. Bye bye. And please do like and subscribe.